Hello everyone, welcome back. Welcome to my revision series. Today we will revise chapter 6, that is staffing. Until now we have revised the previous 5 chapters, and in further videos we will revise the other chapters. So let's start with the revision of staffing. Meaning of staffing? Staffing kya tha? You remember, staffing is filling the vacant positions in the organization and also finding the right type of people for your organization at the right time with the right capabilities and right qualification, right? So let us read the definition. Staffing is a managerial function which aims at filling the vacant position in the organizational structure and keeping them filled. You fill the vacant positions and then you ensure that these positions are filled in the organization. Staffing के लिए ये भी कहते हैं, the line which is very common for staffing is manning the organization. Manning मतलब human resources से या human से उसको भरना, right? So it includes finding the right person for the right job with the right qualification at the right time. So this is staffing. स्टाफ करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो जो पोजीशंस आपकी वेकेंट हैं, खाली है, आप उनको भरो, राइट टाइप ऑफ पीपल से भरो. ये नहीं कि बस जो देखा उससे फिल कर लिया. नो, द टाइप ऑफ अ पीपल should be with the right qualification. They should have the right aptitude of doing that particular job, and then you have to ensure that they don't leave the job, right? So by keeping them trained and developed. Okay, so now see children, there is very common myth that staffing and HRM are same. Many people say, acha staffing yani ki human resources. So no, we don't have to say, we have to say staffing is not human resources. Staffing is a part of human resource management. HRM, that is human resource management, is a wider concept. उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. उसमें आपके कॉम्पनसेशन पैकेजेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करना, ट्रेड यूनियंस को मैनेज करना, और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो स्टाफिंग के प्रोसेस है वो तो है ही है, राइट? सो एचआरएम हैज अ वाइडर स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और स्टाफिंग इज वन फंक्शन और वन पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इट हैपेंस दैट इन वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, जो बहुत छोटे कंपनीज होती है, उनमें ये काम ओवरलैप हो जाता है, या वी जस्ट से कि ओके स्टाफिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज. बट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशंस is bigger, then HRM is a separate department also, right? Now what do we what is the importance of staffing? या हम staffing कर क्यों रहे हैं? Because of the following reasons. The first reason is obtaining competent workforce. हमें competent workforce obtain करनी है. Competent means the one who is able to do the job in a better way. ठीक है, जो अच्छे तरीके से हमारा काम कर पाए ऑर्गेनाइजेशन का. तो हमें ऐसी एक वर्कफोर्स चाहिए. तो वो वर्कफोर्स कहाँ से आती है? स्टाफिंग से आती है. बिकॉज स्टाफिंग इंक्लूड्स द सीरीज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट ऑल्सो. तो द पर्सन दैट यू सेलेक्ट or you appoint for the particular job is a competent person. You are sure after the process of staffing is over that the person that you have obtained is a competent person. Then optimum utilization of human resources. Optimum utilization ensure करता है staffing. कैसे करता है? By proper workload and workforce analysis. ठीक है, we will read that these concepts in the later slides. कि हम workload हम ये देखते हैं कि कितना हमारा जो staff है, जब ये हमारी वर्कफोर्स है, वो ओवर यूटिलाइज तो नहीं है, वो अंडर यूटिलाइज तो नहीं है, हमारे पास जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम एम्प्लॉइज तो नहीं है. सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस वी डू एंड देन वी फाइंड आउट कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड और नॉट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का ग्रोथ होना. सी इन स्टाफिंग वी प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स टू द एम्प्लॉइज, राइट? एंड वी साइंटिफिकली सिलेक्ट द एम्प्लॉइज. तो जब हमारे पास राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, उनकी हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराएंगे, उनकी ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली एंटरप्राइज की ग्रोथ होगी. व्हेन वी हैव अ राइट टाइप ऑफ पीपल डूइंग द राइट टाइप ऑफ जॉब, सो एंटरप्राइज विल ग्रो, राइट? हेल्प्स इन कंपीटिंग. कंपीटिंग इज हेल्प्स इन कंपटीशन विद द अदर कंपनीज. जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है हमारा, वो बिल्कुल वेल यूटिलाइज्ड होगा, एफिशिएंट होगा, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स होंगे, तो फिर the workforce which we have is better than the competitors. Yes, and then this workforce will help us beating the competition in the market. Next is it improves job satisfaction.
job satisfaction towards the employees get satisfied in the job because they are appointed to do something that they are best in doing. जो उनको आता है वो हम उनसे वो काम करा रहे हैं. We have selected, we have appointed, we have placed the employees at the right place. ठीक है, जो काम करने के वो लायक है. Then we have provided them certain trainings so that अगर उनको कोई aspect काम का नहीं आता है, so that they can learn it and they can improve on their efficiency. So that when by doing all these steps, the job satisfaction of the employees improves, right? And next is placing right people at the right job. स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट टाइप ऑफ जॉब. जो पीपल में क्वालिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उसको उसी तरह की जॉब पे हम प्लेस करते हैं. एंड दैट इज व्हाई स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने स्टाफिंग नहीं किया तो जो एम्प्लॉय आया, जो कैंडिडेट आया, हमने उठाया उसको किसी भी जॉब पे रख दिया, सो देन ही विल नॉट बी एबल टू डू हिज ड्यूटीज efficiently, yes or no? So इसीलिए staffing is very important for placing the right people for the right job. So this was all about importance of staffing. So let us read the staffing process. This is very important part of the entire chapter, children. So please go through these steps very, very carefully. So the very first step is estimating the manpower requirement. Manpower requirement हम estimate करते हैं कि हमें what type of people and number of people we require to do the particular job. ठीक है. So this is done with the help of workload analysis and workforce analysis. तो workload analysis में हम ये देखते हैं कि हमारा staff overburden या underburden तो नहीं है. फिर हम workforce analysis करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास what kind of people do we have and what kind of people do we need. इन दोनों का comparison करने के बाद we estimate the manpower requirement. The difference between what we have and what we need. Suppose हमें काम करने के लिए चाहिए थे 80 people and we just have 65. So the comparison shows that we are short of 15. तो इसका मतलब जो present 65 है, they must be overburdened, right? So we compare the present situation and what we need. उसके हिसाब से हम estimate करते हैं कि हमें किस तरह की number of manpower that we need and what type of manpower we need. किस qualification के people हमें चाहिए, right? Once we have identified कि हाँ हमें ये 15 लोग चाहिए जिसमें ये particular qualifications होनी चाहिए, right? Maybe some for finance, some for technical, some for production, some for marketing people, right? Now the second step is we will do the recruitment. Recruitment is finding the candidates, the prospective candidates, and then inviting them to apply for your job. पहले तो आप ये ढूंढो कि employees हमें कहाँ मिलेंगे, ठीक है, किस सोर्स से हमें हम एम्प्लॉइज लाएंगे, कैंडिडेट्स हमें कहाँ मिलेंगे, और उन कैंडिडेट्स को अपनी जॉब के बारे में या अपनी वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, एंड देन इन्फॉर्मिंग इन सच अ वे सो दैट दे गेट स्टिमुलेटेड टू अप्लाई फॉर योर जॉब. सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होता है जब आपके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं. सो इट एंड्स विद द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब. Once you get the applications, then starts the third step, which is selection. अब आप उसमें से select करोगे. एक बार आपके पास a pool of applications have been received, so you will select out of those pool of applications the right type of people that you want. और selection में हमें बहुत सारे we undergo a lot of tests in a series of tests basically, and then we select the right type of people that we need. That the tests and all that, the series of tests that takes place in the selection, we will do it in the further slides, right? अब आपने जब बिल्कुल select कर लिया that yes, these 15 people have been selected and we will appoint them. अब आपने उनको job offer दे दिया, appoint कर दिया, उसके बाद you will place them. Placement and orientation. Placement means you will place them at the right place. अब आप उनको अपनी job दिखाओगे, that job position पे fit करोगे, that this particular person will act as a sales representative, this particular person will act as a finance manager, this particular person will act as an accounts officer, and things like that. Yes, and then you will orient him. Orient him matlab you will introduce that particular new employee to the environment of the business, to the colleagues, to the work. आप उसको introduction कराते हो उसका पूरे organization से in the orientation step. ठीक है, इसको हम induction भी कहते हैं. फाइन, इंडक्शन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय, कि जब न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है पहले दिन, तो आप उसको उसके काम से, उसके
बिजनेस के एनवायरनमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट से, उसके कलीग्स से, सबसे आप इंट्रोड्यूस कराते हो, and you give him some time to get comfortable with the place, and that is called orientation, right? अब एक बार orientation हो गया, the person has come in, he has joined, he's got comfortable and set in the position, then you provide him trainings and developments, which is a continuous process. कुछ aspects में he might lack, so then you have to provide him training, and then you have to provide him opportunities to continuously upgrade himself. तो वो सब वो कैसे होता है? थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आप ट्रेनिंग्स देते हो, उसको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, सो दैट ही इम्प्रूव ऑन द करंट परफॉर्मेंस एंड ही इम्प्रूव्स हिज एफिशिएंसी, राइट? अब उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, वो काम करना शुरू कर रहा है, एंड ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग इट. सो generally the staffing process ends here for most of the organizations, but when the organizations are big enough, they extend this process to the next 3 levels. ठीक है? The next level is performance appraisal. Performance appraisal क्या होती है? At the end of certain time period, you check the performance of the employee कि उसने as per the standard, as per his quality capabilities, as per his qualification काम किया है या नहीं किया है. और अगर नहीं किया, then we provide him feedback that see you are lacking in so and so fields, आपको इतना करना चाहिए था, आपने ऐसे किया. So that is called performance appraisal. Next is promotion and career planning. On the basis of the performance appraisal, हो सकता है कि employee की बहुत अच्छी performance थी, आपने उसको performance appraisal किया after 6 months or maybe 1 year, then you realize कि he is doing his outstanding candidate, so then you can provide him promotion, or you can maybe provide him certain career which is better and challenging task for him. तो इस तरह का काम आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगर वो लैक कर रहा है तो फिर उसके लिए आप करियर प्लान करते हो कि इसको क्या और ट्रेनिंग्स दें या क्या दें जिससे कि वो बेटर हो जाए. ठीक है? जब आपने प्रमोशन दे दिया, उसके बाद आप कॉम्पनसेशन देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अगेन ऑफ द एम्प्लॉय. Compensation means the return, the salary that you give him in return of his work. तो remuneration कह देते हैं इसको, compensation कह देते हैं, whatever you can say, anything that the employee gets in return of his job. Fine. So this is all about staffing process. जो इसके 3 steps हैं, recruitment, selection and training. These are also called the elements of staffing, and that we will deal in detail. ठीक है? तो elements कह देते हैं हम इसको, staffing के aspects कह देते हैं. ठीक है? तो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग आर 3 बेसिक एस्पेक्ट्स. ये वही है जो हमने पहले वाले स्लाइड में पार्ट ऑफ अ फंक्शन, पार्ट ऑफ अ प्रोसेस पढ़ा है, विच इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. ठीक है? तो लेट अस गो विद देम इन डिटेल. रिक्रूटमेंट रेफर्स टू searching for the candidates and attracting them to apply for the job position. Prospective candidates are informed in such a way that they get attracted to apply. स्टिमुलेट करना एम्प्लॉइज को अप्लाई करने के लिए. उनको पहले तो इन्फॉर्म करो कि हमारा जॉब वैकेंसी है, एंड वंस दे आर इन्फॉर्म्ड, देन दे शुड बी अट्रैक्टेड एंड स्टिमुलेटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन. ठीक है? तो वंस दे अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन, you get a pool of applications, and this is what the recruitment is all about. ठीक है? Getting the applications from the prospective candidates is the result of the recruitment. So there are 2 main sources of recruitment. आप कहाँ से ढूंढोगे एम्प्लॉइज को? हमने कहा ना, recruitment refers to searching for the candidates, right? तो कहाँ से ढूंढ सकते हैं? There are 2 main sources. One is internal and other one is external. Internal source, internal means inside the organization, जब हम एम्प्लॉइज को ढूंढते हैं for to fill the job position, और external जब हम organization के बाहर, outside the organization, we search the candidates, we search for the candidates, then it is called external source. So let us read them in detail. Internal recruitment means filling the job positions using existing employees of the organization. So internal sources refers to inviting candidates from within the organization. अब organization के अंदर से आप कैसे job fill कर सकते हैं? Organization में जो already है वो तो उसने already he is occupying one job position. Then how do we fill the another job position? उसको 2 job दे देंगे? No. So how can we do it? Is with the help of transfer. You shift the job employee from one job to the another, maybe from one department to another, from one branch to another branch, right? या उसको एक डिपार्टमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट कर दिया. ठीक है? तो दैट, या एक शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में था उसको इवनिंग में कर दिया, इवनिंग में था उसको मॉर्निंग में कर दिया. Wherever that person is required more,
So that is called transfers, right? And second is promotion. Promotion is shifting an employee to a higher position, carrying higher responsibilities, prestige, facilities and pay. प्रमोट कर दो उसको, उसको एक हायर पोजीशन दे दो. अब हायर पोजीशन के साथ हायर अथॉरिटी आएंगी, पावर ज्यादा आएगी ना, जितने आप ज्यादा बनोगे, ठीक है. फिर उसके साथ ज्यादा इज्जत आएगी, उसके साथ ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, उसके साथ ज्यादा काम भी होगा और उसके साथ ज्यादा पे भी होगी. क्लियर? सो प्रमोशन कर दिया. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपने प्रमोशन कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर नीचे वाली जॉब पोजीशन खाली हो जाएगी, हो जाएगी ना. ये आपने ट्रांसफर करा, तो आपने डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो डिपार्टमेंट बी की तो जॉब फिल हो गई, लेकिन क्या हुआ, डिपार्टमेंट ए की खाली रह गई. अब आप डिपार्टमेंट ए की खाली देखोगे, लेकिन फिर भी इंटरनल सोर्सेज इंप्रूव इसीलिए जरूरत होते हैं. कभी कभी वी नीड टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ठीक है. या हमें लगता है कि इस जॉब के लिए तो हम अपना अंदर का ही लेंगे, बिकॉज वी नीड अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एक्वेंटेड या हु ऑलरेडी नोज द जॉब, और इस लोअर पोजीशन के लिए हम बाहर से ला सकते हैं, ठीक है. सो इन दैट केसेस इंटरनल सोर्सेज आर रिक्वायर्ड, राइट. नाउ कम्स द एक्सटर्नल सोर्सेज. अब बाहर से किन किन तरीके से ला सकते हैं एम्प्लॉइज को? When the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, it is known as external recruitment. अब सबसे पहला इसमें होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कंपनी को कुछ नहीं करना होता. कंपनी अपने फैक्ट्री के गेट पे या अपने जो भी उनका ऑफिस होता है उसके बाहर एक नोटिस लगा देती है, वी नीड सो एंड सो एम्प्लॉइज विद सो एंड सो कैंडिडेट्स. आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम्स के बाहर लिखा रहता है ना, सेल्समैन रिक्वायर्ड, अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, क्लर्क रिक्वायर्ड, ठीक है. तो ये बेसिकली थोड़े से लो लेवल जॉब्स के लिए होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब कंपनी डायरेक्टली नोटिस बोर्ड लगा देती है और फिर जो एनीवन हु इज पासिंग बाय comes across with that notice and then they apply for your job, right? Next is casual callers. Casual callers होते हैं the people in the organization, people keep on applying for the job in the organization even if there is no vacancy. कोई वैकेंसी नहीं निकली है लेकिन वो फिर भी अप्लाई करते रहते हैं. Suppose I'm fed up with my personal job or I'm looking for a better job, so I will apply in 10 different organizations में 10 different organizations में अपना resume डाल के छोड़ दूंगी. So that kind of resumes get collected in the organization. तो organization के पास एक पूरा database होता है of the casual callers जिन्होंने बिना किसी वैकेंसी की अपनी जॉब अपने resume डाला होता है या उन्होंने अप्लाई किया हुआ होता है, ठीक है. तो कंपनी फिर अपना पुराना डेटाबेस खोलती है और वहां से अगर उनको एक डिजायर्ड कैंडिडेट विद द राइट क्वालिफिकेशंस मिल जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड अपॉन कि आपने पहले हमारे यहाँ अपना एप्लीकेशन डाला था या रिज्यूम डाला था, नाउ यू कैन कम फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, राइट. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कंपनी फिर एडवर्टाइजमेंट देती है. दिस इज वेरी कॉमन. एडवर्टाइजमेंट देती है. इट कैन बी इन द न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, सोशल पे, रेडियो पे, टीवी पे. Any media can be selected to give the advertisement depending upon the type of the people you require and the number of people you require, right? Next is employment exchanges. Employment exchanges are basically they are kind of a mediators, right? Those who have the database of the companies which need the people, right, which have the vacancies, and of the candidates who are looking for the job, ठीक है. तो ये जनरली तो ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ मीडिएटर. बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर जनरली फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. इनके पास गवर्नमेंट जॉब्स का डेटाबेस होता है कि कहाँ कहाँ किस किस गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है. तो ये जहाँ जहाँ गवर्नमेंट जॉब निकालती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स में, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, ठीक है. तो इनका डेटाबेस ही मेंटेन करके रखते हैं और फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या. तो देन दे मैच द रिक्वायरमेंट एंड टेल द employees, tell the candidates, right? Next is placement agencies and management consultants. Placement agency और management consultant भी कुछ employment exchanges जैसे ही होते हैं, but they are of a private nature. Generally employment exchanges is the term which is used for government job, और placement agencies और management consultant use होते हैं for the private job. A placement agency is also a kind of an organization जिनके पास database होता है, ठीक है, जिनके पास डेटाबेस होता है कैंडिडेट्स का. सपोज आई नीड अ जॉब, सो आई डू नॉट नो 10 कंपनीज इन द एरिया की जो मेरे को जॉब जहां पर हो सकती है मेरे लायक. तो व्हाट विल आई डू? सबसे अच्छा काम है कि मैं जाऊंगी प्लेसमेंट एजेंसी को ढूंढूंगी, प्लेसमेंट एजेंसी में अपनी रिक्वायरमेंट डालूंगी दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब. सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसी होगी, दे विल आल्सो कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट एजेंसीज
that we need this person of this particular qualification, and then they act as a middleman between job seekers and the organizations. ठीक है. Management consultant is basically they are the people जो one to one बात करते हैं, and they generally deal with the higher level people, जैसे middle level और top level management के जो लोग होते हैं उनसे वो one to one बात करते हैं. For example, director हैं, they will call, I'm already placed as a director in one organization, they will call me, sir, ma'am, there is one vacancy in so and so company, are you interested? तो फिर वो मिलवाते हैं. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टेंट. अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर वो वन टू वन बात कर रहे हैं और वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेट अवे इट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ठीक है. और अगर वो बल्क में बात कर रहे हैं और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो देन इट विल बी प्लेसमेंट एजेंसी. नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंपस रिक्रूटमेंट होता है जब ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस से फ्रेश टैलेंट लेके आती हैं, because those who are children, those who have just completed their education, they are very fresh in talent. उनके पास latest theoretical knowledge होती है with very less practical knowledge, but very vast theoretical knowledge. उनको latest softwares पे काम करना आता है, latest technology का पता होता है, and they are very enthusiastic and energetic क्योंकि उन्होंने अभी काम नहीं किया, so they are ready to work, they are ready to jump into the careers, right? तो जब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है कि यंग बच्चे चाहिए बस जो बहुत सारा काम करें और बहुत जल्दी सीखें, बिकॉज these people have not worked anywhere, right? तो उनको सीखने की बहुत इच्छा होती है. तो जब हमें ऐसे बंदे चाहिए जिनको हम अपने हिसाब से सिखा सकें, we can train them the way we want, right? तो कहीं तो हम क्या करते हैं, कैंपस में जाते हैं, यानी कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और वहां से फ्रेश बच्चे लेके आती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो अनस्किल्ड लेबर्स को आपको शॉर्ट नोटिस में लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स प्रोवाइड करा सकते हैं. दे आर इन टच विद द विलेजर्स और अनएम्प्लॉयड यूथ. ठीक है. तो अगर मेरे पास कोई सीजनल डिमांड है, बहुत इंस्टेंटली मुझे अभी 100 एम्प्लॉयज चाहिए अनस्किल्ड या और मे बी वेरी सेमी स्किल्ड, तो देन वी कैन कॉन्टैक्ट द लेबर कॉन्ट्रैक्टर. कंपनीज जा जाके तो नहीं ढूंढेंगी ना 100 लोग आ जाओ, 100 एम्प्लॉयज चाहिए मुझे, तो वी विल जस्ट कॉन्टैक्ट वन लेबर कॉन्ट्रैक्टर और वो मुझे 100 एम्प्लॉयज लाके दे देगी. जनरली ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए होती है, राइट? नेक्स्ट इज प्रेजेंट एम्प्लॉयज. प्रेजेंट एम्प्लॉयज को भी हम यूज कर सकते हैं. वी कैन एनकरेज आवर प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू गिव द रेफरल्स ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, राइट? या अपने कोई रिलेटिव का, सो दैट वी कैन फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन विदाउट मच ऑफ द हैसल. क्योंकि हमारे पास फिर एक अक्वेंटेंस होता है. अगर मैं अपने किसी बहुत अच्छी मेरी एक एम्प्लॉई है, मैं उसको कहूँ कि इफ यू नो समबडी, योर फ्रेंड और मे बी योर रिलेटिव, देन यू आस्क दैट पर्सन टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर मेरे को एक एक्वेंटेंस है ना, एक ट्रस्ट है कि उसका ऑलरेडी एक रिलेटिव मेरे यहाँ काम कर रहा है, तो आप तो देन इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट विद दैट पर्टिकुलर न्यू पीपल. ठीक है. सो this was all about recruitment. Next comes selection. Selection is once the pool of job applications are received by the company would उस pool में से select करती है 1 or 2 whatever the number they need and then reject the others. तो इसीलिए एक बहुत common saying है कि recruitment is a positive process, selection is a negative process, क्योंकि यहाँ पर rejections बहुत होती हैं, selection बहुत कम होती है, rejection ज्यादा होती है. So that is why it is said to be a negative process. So selection is a process of choosing the most appropriate candidate from the pool of applicants. It involves the series of tests to select the best candidate for the organization. Clear? तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है इसमें? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है जब हम अपने जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं along with their resumes, हम सिर्फ रिज्यूम्स पढ़कर, ये एप्लीकेशंस पढ़कर ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कैंडिडेट हमारी रिक्वायरमेंट का नहीं है, तो हम उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट करते हैं. वी डू नॉट कॉल दैट पर्सन ओनली. ये कैसे पता चल जाता है? पीपल दे जनरली अप्लाई इवन इफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो हमें पता चल जाता है उनकी क्वालिफिकेशन देख के, एक्सपीरियंस देख के या एरिया देख के कि हमें ये पीपल वी डू नॉट रिक्वायर. सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि आई नीड अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड, 10 years एक्सपीरियंस्ड. अब अगर किसी फ्रेशर ने या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले पर्सन ने अगर अप्लाई कर रखा है, तो आई विल नॉट कॉल, आई विल रिजेक्ट. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि वो बहुत कम कर देती है नंबर को. अब हमारा जो सर्च एरिया है वो कम हो जाता है
हमने सिर्फ बिना कैंडिडेट को बुलाए, बिना कुछ मेहनत करे, सिर्फ रिज्यूम्स देके, एप्लीकेशंस देखी, और जो हमारे अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें हमने वहीं से वहीं रिजेक्ट कर दिया, ये हटा दिया, हमने बुलाया ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, अब हमने जो हमारे कैंडिडेट्स, जो हमें एप्लीकेशंस हमें सूटेबल लगी, अब हमने उन कैंडिडेट्स को बुलाया, ठीक है, एंड देन वी कैरी आउट सर्टेन टेस्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ दिस टेस्ट इज सिलेक्शन इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? इट जज द पर्सन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड इंटेलिजेंस क्वोशंट। हम उसमें चेक करते हैं कि पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, वो डिसीजन कितने अच्छे से ले पाता है, उसकी IQ कितना है। तो हम उससे कुछ प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका इंस्टेंट वो जवाब देता है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, इसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, राइट। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड इज एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू लर्न न्यू थिंग्स, कि उसका एप्टीट्यूड है भी या नहीं है उस काम को करने के लिए, उसको वो काम आता है या वो काम करने की एबिलिटी रखता भी है या नहीं रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी इज एन ओवरऑल मेकअप ऑफ द पर्सन, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, नॉलेज, द वे ही मूव्स, द वे ही सिट्स, यस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एटीट्यूड्स, मतलब ओवरऑल मेकअप उस बंदे का, every aspect of the person is called personality. तो हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं टू चेक द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि उसकी प्रोफेशनल नॉलेज और करंट टेक्निकल स्किल्स कितनी है। अब हमें चाहिए 10 years का एक्सपीरियंस बंदा, दैट मीन्स वी वांट कि फुल काम उसको आता है, और फिर हमने ट्रेड टेस्ट किया, हमें पता चला कि उसको तो कुछ नहीं आता, तो फिर क्या होगा, फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट होता है कि उसकी एरिया ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, क्या चीज उसको पसंद है, क्या चीज उसको नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल लो, अगर मैं सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, मुझे रिसेप्शन पे एक लेडी चाहिए, गर्ल, तो शी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो मैं उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछूंगी, अब वो कहेगी आई एम इंट्रोवर्ट, आई डू नॉट लाइक टू टॉक विद पीपल। The person who doesn't like to talk with new people, how can she be fit for a receptionist, right? तो हम इस तरह से हमें जज हो जाते हैं, हम जज कर पाते हैं कि वो बंदा हमारे पर्टिकुलर जॉब के लिए ठीक है या नहीं है। एंड नेक्स्ट कम्स द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू में हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई और क्लैरिफिकेशंस जो हमें चाहिए होते हैं, डाउट्स होते हैं हमें, हम वो क्लैरिफाई करते हैं, और इंटरव्यू में फिर एम्प्लॉय भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, राइट। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। फिर हम जब हमने उसको एप्लीकेशन मांगी होती है इससे, तो वो द एम्प्लॉय गिव्स द रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 people विद whom he has already worked, ठीक है। तो हम उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर हमें कोई डाउट होता है कि इज द पर्सन राइट, जो उसने इन्फॉर्मेशन फर्निश की है वो ठीक की है या नहीं। अब मैंने लिख दिया कि मैंने अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट मैनेजर का काम किया है, तो आई कैन ऑलवेज चेक, अगर मुझे डाउट है, सपोज मैंने उसका सिलेक्शन टेस्ट किया, मुझे लगा कि नहीं है, दिस पर्सन इज लाइंग, तो आई कैन ऑलवेज चेक विद द रेफरेंस ही हैज गिवन, कि तो पता चलेगा कि वहां पर उसने असिस्टेंट मैनेजर नहीं था, वो वहां पे सुपरवाइजर था। तो देन वी कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन डिसीजन। अब ये सब काम कर लिए हमने, सारे टेस्ट ले लिए, द पर्सन हैज क्लियर्ड ऑल द टेस्ट, फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब सिलेक्ट करने के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अभी तक हमने उसको जॉब ऑफर नहीं किया है, हमने उसको सिलेक्ट किया है, वी हैव सेड दैट यू आर सिलेक्टेड, बट बिफोर वी ऑफर यू द जॉब यू हैव टू गेट सर्टेन मेडिकल टेस्ट डन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज का टेस्ट कराती हैं बिफोर दे हायर, राइट, सो दैट उसको कोई क्रोनिक डिसीज तो नहीं है, कोई सीरियस एलिमेंट तो नहीं है, ये पता चल जाता है। अब जब वो उसने मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिए, तब हम उसको जॉब ऑफर देते हैं, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं, जिसको वो साइन करता है और हमें वापस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर नाउ द कैंडिडेट इज सेड टू हैव जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली उसने, क्लियर हो गया। अब उसका प्लेसमेंट होगा, फिर आगे के काम स्टेप्स होंगे जो कि हम पहले कर चुके हैं। Now the third element or third aspect of staffing is training and development. When I told you कि जब person is already placed in the organization, तो हम उसको continuous training of developments देते हैं for new aspects, right? तो क्या है training? क्या है training? Refers to providing the employee an opportunity to constantly acquire and improve their skills and knowledge. Training is provided so that the job can be done in the expected manner.
ट्रेनिंग का क्या पर्पस होता है कि ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, तभी कभी कोई एम्प्लॉय इज लैकिंग इन पर्टिकुलर स्किल, ये उसको कोई स्किल अच्छे से नहीं आती है, तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं उस पर्टिकुलर स्किल की, या कुछ नया चेंजेस आए हैं, कोई नई मशीनरी इंस्टॉल हुई है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, या हमने कोई चेंज किया एनवायरमेंट में, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, सो दैट द पर्सन कैन डू द जॉब इन द राइट मैनर, राइट। अगर अब ये ट्रेनिंग है तो फिर डेवलपमेंट क्या है? बोलो मैम ये तो कंबाइंड वर्ड्स होते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। नहीं, ट्रेनिंग इज डिफरेंट, डेवलपमेंट इज डिफरेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? ये ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑल रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग इज वन पार्ट, इट्स जस्ट अ टेक्निकल पार्ट. Development is a wider scope, right? Development is you develop in all your respects, आपकी इमोशनल, आपकी मेच्योरिटी, आपका साइकोलॉजी, आपका ट्रेड स्किल्स, right? You when you grow in all the aspects, then you said to be a development process, or development is an ongoing process. डेवलपमेंट चलता रहता है, आप सीखते रहते हो, आप 4 साल, आप 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो यू कंटिन्यूसली लर्न मेनी थिंग्स एवरी डे, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स। आज आपको आपने आपसे किसी की लड़ाई होगी, आपने उसको सही से डील किया, आपने अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को डील किया, आपने सुपीरियर से कुछ सीख लिया, राइट? सो ऑल दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग इज the process of increasing knowledge and skills. Development is a process of learning and growth. ठीक है, training enables the employees to do the job better. Development enables the overall growth of the employees. Training is job oriented process. एक particular job को करने के लिए हम training देते हैं. Development is a career oriented process. उसका career develop होगा, career वो आगे आगे बढ़ता रहेगा career में. Levels of employees में क्या है? Training is provided at all levels. और डेवलपमेंट इज जनरली डिजाइन फॉर मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट. ट्रेनिंग हैज अ नैरो स्कोप, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें सिर्फ लिमिटेड नॉलेज देते हैं, जो हमें उसको एम्प्लॉय से काम कराना है हम उसको उसी की नॉलेज देते हैं. डेवलपमेंट इज अ वाइडर स्कोप. डेवलपमेंट इज ऑल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, राइट? तो फोकस ऑफ ट्रेनिंग इज ऑन द प्रेजेंट प्लेसमेंट एंड फोकस ऑफ डेवलपमेंट इज ऑन द फ्यूचर, राइट? डेप्थ ऑफ नॉलेज इन ट्रेनिंग इज वेरी लिमिटेड एंड शैलो, क्योंकि जितना हमें सिखाना है हम उसको उतना ही सिखाएंगे, हम उसको पूरी चीज, अगर हमें मशीनरी का एक पार्ट उसको सिखाना है या प्रोडक्शन प्रोसेस का एक चीज सिखानी है तो हम वही सिखाएंगे, हम उसको पूरी प्रोसेस सिखाएंगे ही एम्प्लॉय को. पर डेवलपमेंट की नॉलेज इन डेप्थ होती है, डीप होता है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय. वन इज ऑन द जॉब, सेकंड इज ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब, जब जॉब में रहकर हम ट्रेनिंग देते हैं, जॉब में वो ऑलरेडी काम कर रहा है, एक जिस जगह उसको काम करना है, सपोज एक मशीनरी पे है, वो ऑलरेडी मशीनरी पे काम कर रहा है, हम उसको मशीनरी पे रहते रहते काम करना सिखाते हैं. वी प्रोवाइड हिम द ट्रेनिंग, राइट? ऑफ द जॉब इज कि कोई बहुत टेक्निकल चीज है, हम उसको मशीनरी पे नहीं सिखा सकते, तो हम उसको पहले दूसरे बाहर रखते हैं जॉब से, उसको सिखाते हैं और फिर उसको जॉब पे वापस लाके प्लेस करते हैं. So there are types of on the job training, which is internship, induction and apprenticeship, or off the chain job is vestibule. So let us read them in detail. Internship क्या होती है? When it is an agreement between the professional institute and the corporate sector, where professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. जो theoretical knowledge students ने colleges में सीखी है, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में सीखते हैं. सो दैट इज अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग. तो कंपनीज में और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में स्टूडेंट्स जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, वहां पर सीखते हैं और फिर वहां से तो कहीं परमानेंटली वो किसी जॉब के लिए दे गेट एलिजिबल. इंडक्शन ट्रेनिंग इज सेम एज ओरिएंटेशन, जो मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग किया था, कि ओरिएंटेशन इज कॉल्ड इंडक्शन, जहां पर हम न्यू एम्प्लॉय को वेलकम करते हैं और उसको एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड वी गिव हिम सम टाइम टू गेट कंफर्टेबल विद द प्लेस. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब एक नया कुछ हमें ट्रेनिंग देनी होती है, कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन में आया होता है, तो ट्रेनर गाइड करता है एम्प्लॉय को अबाउट दैट पर्टिकुलर स्किल. फिर ट्रेनर को देखते 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 एम्प्लॉय सीख जाता है, फिर धीरे धीरे ट्रेनर हट जाता है, एम्प्लॉय वो काम करता है, फिर ट्रेनर सुपरवाइज करता है कि ऑब्जर्व करता है कि हाँ ट्रेनिंग ठीक से काम कर रहा है या एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है, एंड देन ही hand over the complete job to the employee. So that is called apprenticeship training, right?
एंड लास्ट इज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. जब जो बहुत टेक्निकल चीजें हैं, बहुत रिस्की होती है, मशीनरी पे उठाया और नए एम्प्लॉय को डाल दो कि तुम चलाओ. फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, मैं पहले दिन उसको थ्योरी सिखा दी हमने 6 महीने, और उसको पहले दिन बिठा दिया प्लेन में कि चल उड़ाओ. This is not possible, right? So what do we do is we create a dummy environment, an artificial environment, which is exactly the replica of the real environment. और उस पे उसको सिखाते हैं. ठीक है, जब उसको अच्छे से सीखना आ जाता है, वो करना आ जाता है, तब हम उसको एक्चुअल वर्क प्लेस पे शिफ्ट कर देते हैं. जैसे अब सपोज पार्लर में हेयर कट है, मैं पहले दिन क्लाइंट के ऊपर लाके उसको कैंची देके बिठा दूं काटो. नो, व्हाट डू वी डू, हम आर्टिफिशियल हेयर पे उसको प्रैक्टिस कराते हैं ना पहले एम्प्लॉय को, और फिर वो हेयर कट सीखता है. देन वी अलाउ हिम टू डू द हेयर कटिंग ऑन द रियल पीपल, राइट? सो दैट इज व्हाट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ठीक है, so this was all about the staffing. I hope you have revised well. रिवाइज कर लिए सारे मेन पॉइंट्स. अगर कोई पार्ट में अभी भी डाउट रह गया है एंड यू वांट टू रीड देम इन डिटेल, तो डोंट वरी, I have full videos of the entire chapter where I have dealt with each and every aspect of this chapter in great detail. 3-4 पार्ट्स में मैंने पूरा स्टाफिंग डिस्कस किया है with the PowerPoint presentation, so you can have notes also. So you can subscribe to my channel and go to my channel. वहाँ पर स्टाफिंग के डिटेल वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. Don't go anywhere, press like button at least. So I'm coming back with chapter 7. Till then, stay well, take care, goodbye.